guys, hello everyone, hello and welcome to the 11th episode of Inspiring Small Businesses. तो आज के हमारे गेस्ट है गौरव एंड सरिता, द फाउंडर्स ऑफ कैटफैट इंडिया. Hi Gaurav. Hi Sarita. Hi, how are you? मैं बस एकदम बढ़िया. आप कैसे हो? We are good. I would like to request you guys कि आप अपने बिजनेस के बारे में अपने विजन से बताओ या इंट्रोड्यूस करो. So we started this CatFat. It's been almost a year now. So हमने last year start किया था. With clothing we started, Yes. but that time second lockdown चल रहा था, wave चल रहा था, and people were not much into shopping and all that. So those were really tough time. और initially उस time हमारे इतने followers भी नहीं थे, इतनी growth भी नहीं And थी. everyone was not in the right, position or correct उसमें नहीं थे. They were not like mentally, mentally they were not prepared for the shopping and all these leisure activities, of course. हाँ, but धीरे-धीरे eventually it's after a few months we try and tested different things, different products, and eventually it's been now a year and now we have 56,000 followers and we deliver almost like 20,000 plus orders we have delivered. 20,000 plus we did. Yes. Crazy. So, and every other week we try to add on new things to our catalog, to our listing, and mainly right now we are focused on stationery part of our catalog. Every other week हम नए प्रोडक्ट्स लाते हैं, ऐड ऑन करते हैं कैटलॉग में. Yeah, and we are planning कि क्या कर सकते हैं फ्यूचर में, क्या ऐड ऑन कर सकते हैं. So everything is there. तो आपकी स्टोरी से लगा कि लॉकडाउन कंट्रीब्यूटेड थोड़ा सा आपके जो ये बिजनेस स्टार्ट करने के पीछे की जो रीजन हो सकता है उसके लिए. बट ये आइडिया कहाँ से आया कि एक बिजनेस स्टार्ट करना है और इसको ग्रो करना है, तो उसका एक इनिशियल स्टोरी या कन्वर्सेशन हुई होगी ना, वो क्या थी? शुरू से we have this thing in mind, like we are school friends, तो ये हमेशा से था कि यार कुछ तो करेंगे, कभी तो करेंगे. So of course वो होता है ना, being a teenager, being a school boy or girl, हम सोचते हैं यार कुछ तो अपना करेंगे type of. And there are like so many people who inspires us. इनकी इंस्पिरेशन स्टोरीज हम सुनते हैं and we want to become like them. तो शुरू से आ जाता है ना, अंदर से आ जाता है कि यार कुछ तो करना है. बट वही होता है ना, करेज नहीं जुटा पाते हैं. So, but during this lockdown period, we finally, gathered the courage and all कि यार अब तो कर ही लेते हैं. अब तो घर से काम चल रहा है. पहले हमने सोचा कि जॉब के साथ साथ करते हैं, कि जॉब भी चलती रहेगी तो किसी was work from home for me and for him also. But फिर हमने सोचा कि नहीं हो पाएगा, ना हम अपने बिजनेस को टाइम दे पाएंगे, ना ही हम अपने ऑफिस को टाइम दे पाएंगे. सो वी डिसाइडेड कि करना है तो भाई छोड़कर ही करना पड़ेगा. बिकॉज़ शी इज अ टीचर, तो सुबह 9 o'clock से लेके 2 or 3 o'clock तक की क्लासेस चलती रहती हैं ऑलमोस्ट. सो या एंड तो फिर यही था कि वी डिसाइडेड कि अब छोड़ते हैं और कुछ स्टेप उठाते हैं. सो या वी स्टार्टेड विद क्लोथिंग थिंग एज यू मेंशन, बट वो नहीं चला क्योंकि क्लोथिंग में ऑफ कोर्स यू आल्सो नो कि आजकल कंपटीशन तो है ही कम. प्लस बहुत ज्यादा प्रोडक्शन लाइन चाहिए होती है. Yeah, you need a huge production house for clothing. But nevertheless, it's going good. Yeah, हमारे नहीं, I seriously would like to thank our happy souls. उन्होंने हमें होता है ना, कस्टमर्स हमारे जो है, हमारे क्लाइंट्स, वही हमें बताते गए what we need to add on our catalog, what they want, what their demand is, and we also realized, we also sat and see the agenda, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते. Exactly. जो हमारी initial niche audience बनी थी, those are like moms. तो they suggested कि आप stationery लाओ, cool items लाओ, we definitely purchase. And हम लाए और उन्होंने करा and they loved it. promise fulfill किया and they loved it. So we are really That's so nice to hear. So it's all about कि हमें idea आधा हमें आया, आधा उन्होंने दिया. तो आप तो लाइक टीचिंग बैकग्राउंड से हो गए, और गौरव आपका क्या बैकग्राउंड रहा है? I was into fashion. I did my master's in fashion technology. Then I worked almost a year for a corporate firm. Then lockdown happened, तो work from home ही था. And शुरू से हमारे mind में था we have to start it. तो हमने हिम्मत करी, we left our job and we started with this. तो हिम्मत तो एक एस्पेक्ट हो गया जो बहुत जरूरी हो गया. उसके अलावा और भी स्किल सेट या क्वालिटीज होती है जो रिक्वायर्ड होती है, लाइक बिजनेस को स्टडी करना, फिर इंस्टाग्राम मार्केटिंग चलाना, exactly. चलाना. He is having a knowledge of the social media and everything. So he was like वो मैं संभालूंगा.
I will do that. Like हम दोनों करेंगे of course, but जो main hand होगा इसका वो इसका होगा. And inventory हो गई, आपका stock हो गया कि stock कितना रखना है, inventory कितनी रखनी है, packaging कैसे देखना है, orders का updation कैसे करना है, how to maintain those Excel part जो हो गया, वो मेरा डिपार्टमेंट हो गया. सो हमने अपने डिपार्टमेंट शुरू में ही बहुत क्लियर कर लिए थे कि हाँ भाई ये करना है. लाइक वी हेल्प ईच अदर इन एवरी फील्ड, बट जो होता है ना एक डिपार्टमेंट, वो हमने पहले से ही अपने अलग करके रखे हुए थे जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो. ओह नाइस. तो आपने बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा, और ये आपका बिजनेस का जो, एक तो मैं जानना चाहूंगा कि जो नाम है उसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, एंड दूसरा नाम पहले सोच लिया था या फिर कोई एक स्टेज आया था जहाँ पे सोचा कि ये नाम इसके लिए बहुत सूट करता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं था. दिस जापानीज कार्टून इज देयर, घर में देखा जाता था बाय द नेम ऑफ कैट फैट. हम पहले देखते थे तो हमने काफी सारे नाम सोचे. वी वांटेड, एक माइंड से तो था कि थोड़ा क्वर्की नाम होना चाहिए, कूल होना चाहिए, बट हमने काफी सारे नाम की लिस्ट बनाई. सो मेनी नेम्स वर देयर, बट कोई भी क्लिक नहीं कर रहा था. फील गुड फैक्टर नहीं आया था नाम में. कैट फैट एक बड़ा आई कैचिंग सा था और सब देखते ही थे, हमारे घर में देखते थे इसके घर में. एंड वी बोथ लव कैट्स, सो आई थॉट व्हाई नॉट कैट फैट. तो देन कैट फैट इंडिया में रख दिया. इतना ज्यादा सोचा नहीं था कि यार इसमें प्रोडक्ट भी घुसेंगे नहीं घुसेंगे, हमें जो नाम कूल लगा हमने रख दिया. ओके. तो आपके बिजनेस जैसे आपने स्टार्ट किया उसके दो पार्ट्स हो गए आई गेस. एक था जो लॉकडाउन के अंडर आपको जो चलाना पड़ा, और एक जब लॉकडाउन खुलना शुरू हो गया, थोड़ा ज्यादा फ्रीडम मिला, थोड़ा ज्यादा घूम फिर के प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करना, चीजें डिलीवर कर पाना. तो वो दो स्टेजेस को आप डिवाइड करके बता सकते हैं कि पहला वाला एक्सपीरियंस कैसा था और पोस्ट लॉकडाउन कैसा एक्सपीरियंस रहा? दोनों ही काफी अच्छे थे, बट इनिशियली काफी ज्यादा स्ट्रगल था. बिकॉज काफी लोग हमें बोलते हैं कि इतनी जल्दी तुमने ग्रो कर लिया, बहुत जल्दी आपने ग्रो कर लिया, बट ऐसा नहीं था. इनिशियली बहुत ही टफ था. शुरू के आई गेस 3 to 4 months we have only 128 followers, I remember. But by the end of the June, I guess first week of June and second week of June में we started getting good reach. Followers count बढ़ने शुरू हुए, orders ज्यादा आने शुरू हुए. तो शुरू के 3 months में काफी टफ था, और मेनली इसलिए भी टफ था बिकॉज एट दैट टाइम वी हैव नो नॉलेज. हमें एक एम करना है, एंड वी वर बोथ नॉट इवन मच एक्टिव ऑन सोशल मीडिया. वी वर लाइक कि साल या 6 महीने में एक बार इंस्टा पोस्ट डाल दिया. इफ वी आर ट्रैवलिंग सम प्लेस तो इंस्टा पोस्ट डाल दिया. एंड वी हैव नो आइडिया हाउ टू मेक रील्स एंड एवरीथिंग, बट ये था कि करना है. तो धीरे धीरे शुरू में रील सख्त बहुत ही गंदी रील्स बनाते थे हम, बट ग्रेजुअली हमने अपनी रील क्वालिटी भी इम्प्रूव करी. काफी सारी चीजें थ्रू आउट. आई बिलीव सिंस द डे वी स्टार्टेड बिजनेस, एवरी डे वी वर लर्निंग समथिंग. एवरी डे इज अ लर्निंग डे. शुरू में वी वर लाइक जीरो, बट नाउ एक स्टेज आ गया कि ऑलमोस्ट वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि क्या क्या होता है, क्या एल्गोरिथम रहता है इंस्टाग्राम का, कैसे रील्स वर्कआउट करते हैं, क्या टाइमिंग्स होनी चाहिए एंड एवरीथिंग. वो लर्निंग प्रोसेस ही था. शुरू में किसी को कुछ भी आइडिया नहीं था हम दोनों को, बट ग्रेजुअली बाय टाइम दे के, टाइम इन्वेस्ट करके, थोड़ी अपनी खुद की रिसर्च करके, बस थोड़ा दूसरों से गाइडेंस लेके, now we had a like very solid foundation. और दूसरा कौन सा फेज अच्छा था ये कहना मुश्किल है, बट हाँ वो उस फेज का मजा अलग था, एक्सपीरियंस अलग था, आपका कुछ और ही है. सो या दोनों ही मतलब हमारे लिए अच्छे थे. उस टाइम ऐसा होता कि हफ्ते में हमारे 2-3 ऑर्डर्स भी आते थे, बट वी वर सुपर थ्रिल्ड. जब भी कोई ऑर्डर आता था वी वर लाइक सुपर थ्रिल्ड. एक ऑर्डर को पैक करने में आई रिमेम्बर आई गेस हम 2 से 3 घंटे लगाते थे प्रॉपर उसको पैक करने. 3-4 टेक लेते थे. वी यूज्ड टू टेक सो मेनी टेक्स जस्ट टू मेक वन रील ऑफ दैट प्रोडक्ट. हम परफ्यूम वगैरह मारते थे प्रोडक्ट में. जब खुले तो अलग ही एक्सपीरियंस मिले कस्टमर. खूब सारी चॉकलेट्स हम ऐड ऑन करते थे एज अ फ्री भी. वो पहला होता है ना, तो स्टिल, बट अभी भी जब भी ऑर्डर आता है तो स्टिल वो एक्साइटमेंट उतनी ही है. बट वो जो पहले एक्साइटमेंट होती है वो एक अलग होती है, यू नो दैट कि ऑर्डर आया है. वो आप जैसे आप लाइक सोच भी रहे हो, फ्लैशबैक में भी जा रहे हो, तो दिख रहे हो रॉ इनोसेंस की ये जो एक्साइटमेंट था, चीज आ जाती है कि हाउ वी स्टार्टेड एंड कैसा था, क्या था. सो या इट्स अ गुड मेमोरी. बट तो जैसे आपने बताया कि इंस्टाग्राम हेल्प्ड यू टू ग्रो द बिजनेस काफी अच्छे से. उसमें भी 2 चीजें आ जाती है. एक है कि आप क्या कंटेंट डाल रहे हो वो सोचना, रिफाइन करना. दूसरा है कि एल्गोरिदम को क्रैक करना जिसको बोलते हैं. तो ये दोनों चीजों को आपने कैसे नेल किया? आई एम श्योर कि दोनों चीजों पे ही वर्क हुआ होगा.
एग्जैक्टली द थिंग वाज दैट टाइम हैशटैग वगैरह बहुत ट्रेंडिंग थे, तो हम अलग अलग डिफरेंट हैशटैग का कॉम्बिनेशन बना के डालते थे, बट एट द एंड वो हमें कभी इतना हेल्प किया नहीं. व्हाट वेंट इज दैट हमारा एक प्रोडक्ट था, उनकी रील, 2-3 प्रोडक्ट्स थे, उनकी रील सडनली मे बी वो इट वाज इन दैट टाइम क्या चल रहा था, आई गेस दैट टाइम 7 सेकंड रील्स वर ट्रेंडिंग, पीपल लाइक मेकिंग अ 7 सेकंड रील. एंड मैंने थोड़ा अपने एनालिसिस करे तो मैंने देखा जितनी भी ट्रेंडिंग रील्स थी दैट वाज ऑन दी 7 सेकंड मॉड्यूल. तो हमने भी कुछ रील्स बनाई जो कि हमने ट्राई टू लिमिट दैट इन 7 सेकंड एंड अंडर, और वो चीज वर्कआउट कर गई. एंड जब रील ट्रेंड हुई, हमारे इनिशियल ऑर्डर आना शुरू हुए, सो पीपल रियली लव्ड इट our products. Okay. And not just the product but the overall experience. जिस तरह से उनको पर्सनली हमने ट्रीट करा ऑर्डर लेने के लिए, और हमने कोशिश करा जल्दी से जल्दी स्पीड डिलीवरी दें, एंड वी प्रोवाइडेड इवन दैट अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस होता है ना, नॉट जस्ट द प्रोडक्ट. आई बिलीव एक अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस क्लाइंट को देना चाहिए, कस्टमर्स को, सो दैट दे लव द प्रोडक्ट. देयर इज एक्सपीरियंस जब ऑर्डर क्लाइंट ऑर्डर करता है और उसको प्रोडक्ट मिल जाता है तब तक, और अगर वो एक्सपीरियंस और जर्नी वो अच्छी हो जाती है ना, सो द क्लाइंट विल won't go anywhere. वो आप ही के पास आएगा. अगर आपके पास प्रोडक्ट भी नहीं होगा तो he or she will ask you कि प्लीज अरेंज इट फॉर अस. हाँ, and the biggest part is I believe word of mouth. Word of mouth. इतने लोग, उन लोगों को इतना अच्छा लगा, उन्होंने किसी ने बहुत so many clients हमारे जितने भी हैं वो यही कहते हैं कि I got your reference from like dad, उसने बोला, इसने करा, मेरे cousin ने बताया. So it's always word of mouth. अगर if you were providing good quality products at affordable price, so I guess word of mouth बहुत जल्दी spread होता है. Exactly. Since now हमारा पूरा जितना भी हम करते हैं सब organically है. Yeah, we haven't spent single penny on advertisement yet. आज तक नहीं किया. आपने क्लाइंट को ही मार्केटिंग में लगा दिया. हमने उन्हीं को लगा दिया. Exactly. नहीं, they are so sweet also ना कि वो हमारे बिना बोले ही वो उन्होंने ये सब किया. और ऐसा नहीं, आई बिलीव कि आपका मार्केटिंग, पेड मार्केटिंग हेल्प्स अ लॉट, बट हम वो भी करवाना चाहते हैं, बट एक टाइम नहीं मिल पा रहा हमें. वी वांट कि अपनी फाउंडेशन को थोड़ा और स्ट्रांग बनाए, देन वी स्टार्ट विद दिस मार्केटिंग कैंपेन एंड ऑल. श्योरली विल डू दैट, बट अभी नहीं. तो जैसा आपने बताया कि होना जरूरी है. वी नीड टू डू द होमवर्क. हाँ, राइट, टीचर वाला एटीट्यूड से बोल दिया. थोड़ा तो आ ही जाएगा. तो बिल्कुल बिल्कुल. तो एक और चीज की, जैसे आपने बताया कि शुरू में 2 या 3 ऑर्डर आते थे, बट एक्साइटमेंट तो था ही, बट वो क्या नंबर था या वो क्या फेज था कि जब आपको इनफ ऑर्डर्स आने लगे और आपको लगा कि यार सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये जो हम चीज कर रहे हैं, और मोटिवेशन आ गया कि हाँ हम राइट डायरेक्शन में, बस अब होते जाएगा सही से. आई बिलीव एवरी अदर वीक और एवरी अदर मंथ हमारा ऑर्डर रेशो बढ़ ही रहा था. शुरू में 5-6 ऑर्डर आने लगे पर डे, देन 8-10, देन 15-20, एंड देन वीकेंड्स पे हमें 50+ ऑर्डर्स भी आने लगे थे. और एक दिन ऐसा आया था व्हेन वी गॉट 80+ ऑर्डर्स और ड्यूरिंग दिवाली टाइम में बहुत रश था. दिवाली एंड दैट राखी सीजन वाज आल्सो, एंड क्रिसमस वाज आल्सो रियली गुड. क्रिसमस वाज सुपर डुपर. एंड प्लस इट वाज अ पहली बार था, मतलब अभी हमने शुरू करा तो वाज फर्स्ट दिवाली, फर्स्ट क्रिसमस, फर्स्ट होली, फर्स्ट राखी. हमारा ना अभी we haven't completed first year yet, तो सारे फेस्टिवल्स जितने भी थे हमारे वो सारे पहले ही थे. So we were also exploring कि यार क्या जाता है, क्या होता है, क्या नहीं करता है. It was an experiment for us. We never know कि हमने क्या चाहिए कस्टमर को, but yeah, it was good. हाँ, तो ऑर्डर रेशियो जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो हमें लग रहा है कि हाँ we are doing good. राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, that depends. जब हम बैठेंगे आराम से देखेंगे. हमने इतना, टू बी ऑनेस्ट, हमने कभी इतना सोचा नहीं, इतना सीरियस थॉट लेके, और यू नो होता ना एकदम डर कर करना वाला बिजनेस. एट द एंड शुरू से हम दोनों का माइंडसेट था कि वी वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑर्डर्स, वी डोंट वांट टू इंक्रीज फॉलोअर्स और प्रॉफिट, हमारा मार्जिन. हमारा एम ये था कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ाओ, घर घर तक अपने ब्रांड को पहुंचाओ, धीरे-धीरे प्रॉफिट तो फिर आ ही जाएगा. व्हाट वी वांट कि अगर एक क्लाइंट आ रहा है तो वो वापस ना जाए, वो वापस अगर उसको कुछ चाहिए इस प्रोडक्ट से रिलेटेड तो वो हमारे पास ही वापस आए. सो वी वांट दैट. फॉलोअर्स तो ऑफ कोर्स आएंगे जब आपकी क्वालिटी होगी तो, बट हमें, हमारा मेन एम है कि कस्टमर्स को बना के रखो. अंडरस्टूड. वो आप कई लोगों ने कमेंट्स भी किया, जो लोग आपको जानते हैं, अच्छे प्यारे से कमेंट्स आ रहे थे, तो वो तो लग रहा है कि आपने कम्युनिटी बना रखी है, एक फैमिली बना रखी है. तो ये फैमिली में से कोई ऐसा रिव्यू है जो मेमोरेबल है, या कोई कस्टमर एक्सपीरियंस की उन्होंने बहुत प्यार से कुछ मैसेज भेजा और लगा कि
हाँ यार, ये बहुत अच्छा हार्ट वार्मिंग मैसेज था। बहुत है, ऑलमोस्ट सारे हमारे कस्टमर्स ऐसे हैं। इफ यू वांट, अगर आप स्क्रीनशॉट और रिव्यूज में जाके देखोगे ना, सो एवरी सेकंड कस्टमर इज लाइक दैट ओनली। और सबसे अच्छी बात, हमें आज तक किसी भी कस्टमर से बोलना नहीं पड़ा कि हमें फीडबैक दो, वो खुद ही स्टोरी डाल के हमें टैग कर देते हैं। तो इट्स अ लवली फीलिंग, स्पेशली व्हेन दे आर आउट एंड यूजिंग आवर प्रोडक्ट्स, और वो फोटोज भेजते हैं। इट्स अ even ब्यूटीफुल you know फीलिंग। those small kids while they're going to school, while they're having a party or outing and they're carrying your products and you know posing with your products, तो वो अलग ही फीलिंग आती है। राइट। तो मतलब आपके ऑलमोस्ट सारे कस्टमर्स खुश है और खुद से फीडबैक दे रहे हैं टाइम निकल के, क्योंकि एक बार प्रोडक्ट मिल जाता तो इट्स रियली टफ। अच्छा प्रोडक्ट आ गया तो मैं तो एंजॉय करूंगा, अपनी लाइफ में लग जाऊंगा, बट टाइम निकाल के अगर कोई रिव्यू दे रहा है तो इट स्पीक्स अ लॉट अबाउट द प्रोडक्ट। हाँ, they are specially taking of photos। कई customers तो ऐसे हैं, they do shoot। जब initially we were selling those scrunchies ना, so they were sending us so many good pictures, I And guess। reels also, they were like making yeah, they were reels and making tagging reels। us। Oh wow। तो वो बहुत अच्छी फीलिंग थी। सो नाइस। Yeah। बट कोई ऐसा कस्टमर एक्सपीरियंस रहा है, एक आधा तो होगा कि लाइक अब 100 में से 1000 में से एक तो निकलता होगा जो कस्टमर आया तो लगा यार ये क्यों पल्ले बढ़ गया या ये नहीं होना चाहिए था। नहीं, हाँ, ऐसे भी होते हैं, बट इट्स द ऑल पार्ट ऑफ बिजनेस। आपको ऐसे लोग भी मिलते हैं, आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं, बट हमारा टू बी टचवुड सारे बहुत ही रेयर ही हुआ है कभी ऐसी। सारे हमारे क्लाइंट्स कभी कोई चीज होती है, कभी थोड़े लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं बट ऑर्डर्स के लिए, बट कांट हेल्प इट। कभी होता है कि कोरियर कंपनी से भी कुछ ग्लिच हो रहा है, बट वी कैन नॉट, जो चीज हमारे हाथ में होती है और जहां तक हम कर सकते हैं, वी डू आवर बेस्ट। व्हाट वी वांट इज कि हमारे क्लाइंट को आज ऑर्डर किया है तो जल्द से जल्द जितना हो सकता है उतना मिल जाए, ऑर्डर जल्दी से जल्दी। प्लस लोगों की आदत भी तो खराब कर दी है अमेज़न और फ्लिपकार्ट या नेक्स्ट डे डिलीवरी देके। तो पीपल एक्सपेक्ट कि आज ऑर्डर कर दिया तो कल मिल जाए, तो वो काफी बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। बट हम वर्कआउट कर रहे हैं, जितने भी हमारे दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव नियर बाय एरिया है, जो भी दिल्ली एनसीआर एरिया है, वी आर ट्राइंग टू डू इट लाइक 1 डे डिलीवरी, 1 डे और 2 डे डिलीवरी। और जो मेट्रो सिटीज है मुंबई, बैंगलोर, 2 to 3 डेज डिलीवरी हम कोशिश कर रहे हैं, और ज्यादातर ऑर्डर्स पहुंच भी जाते हैं। बट कुछ लैग हो जाता है सिंस वी हैव अ स्मॉल टीम, तो वो लैग होना लाजमी है, बट उसमें भी हम वर्कआउट करते हैं। बट हाँ, ये है हमारे दिमाग में कि स्लोली एंड ग्रेजुअली ज्यादा से ज्यादा हम इतने टाइम पीरियड पे डिलीवरी दे पाए। ओके। तो आपने जैसे काफी पहले क्लॉथिंग से स्टार्ट किया, फैशन से स्टार्ट किया, फिर पिवट किया स्टेशनरी में, तो आपने नया सेगमेंट टैप किया, तो इसमें प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे रखनी है, क्या करना है, इस पे आपने क्या थॉट दिया था? लाइक कोई भी जनरली कोई निश मार्केट में घुसता है या फिर कोई, क्योंकि यूनिक प्रोडक्ट लेके आता है तो उसको प्राइस करना भी एक चैलेंज होता है कि ज्यादा भी ना करूं कि कस्टमर फिर आई ना, बट इतना भी कम नहीं, क्योंकि हम एक क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं डेफिनेटली, राइट? तो वो बैलेंस कैसे मेंटेन करते हो आप? See what we do is हम बहुत ही मिनिमम प्रॉफिट रखते हैं। Why? Because we want to create clienthood. Secondly, what we want is कि Amazon and Flipkart पे भी काफी प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हम देख रहे हैं, तो Amazon and Flipkart पे भी easily accessible है। बट हम क्या चाहते हैं कि Amazon से जो बॉक्स आ रहा है और वो जो एक्सपीरियंस होता है खुलने वाला, वो एक अलग है, एंड जो हमारे पास से बॉक्स आ रहा है और वो खुलने का एक्सपीरियंस है वो अलग है। So what we want is at the same time, if we are giving same products to the client जो Amazon और Flipkart या कहीं और पे भी मिल रहे हैं, वो हम दें, बट हम जो एक्सपीरियंस है वो एक अलग ही लेवल का दें उनको। होता है ओपनिंग एक्सपीरियंस ही होता है, अलग लेवल का होता है। if you are planning to give someone, तो आपको सोचना ना पड़े कि यार मैं कहाँ से ऑर्डर करूँ, आपके दिमाग में सिर्फ ये है कि कैटकैट से ऑर्डर करो, वो सब कुछ हैंडल कर लेंगे। दे विल हैंडल ऑल द थिंग्स, लाइक आपको कोई नोट लिखवाना है या फिर योर पैकेजिंग, गिफ्ट रैपिंग, एनीथिंग, दे विल हैंडल इट। आई डोंट हैव टू गो एनीवेयर, मेरे को सिर्फ ऑर्डर करना है और मेरा काम हो जाएगा। If sometimes client want to add on जो हमारे कैटलॉग में नहीं है, वो भी हम ले आते हैं। We do that. किसी को अपने चॉकलेट्स कराना है, कुछ फ्लावर्स की पेटल्स डलवानी है, होता है, बहुत चीजें होती हैं। People are so creative these days. And what we want is इस एक्सपीरियंस को हम अफोर्डेबल प्राइस में दें जो Amazon और Flipkart से कम हो। बिकॉज हम Amazon और Flipkart को अभी डिलीवरी के लिए नहीं कर सकते, बिकॉज देयर डिलीवरी इज लाइक सुपर फास्टेस्ट, वो हम अभी compete नहीं कर सकते। मे बी इन फ्यूचर, टच वुड, बट नॉट नाउ। सो व्हाट वी वांट इज कि अभी हम उनसे कम प्राइस में
गुड क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ कोर्स एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस, सर्विस वो बहुत अच्छी थी, इवन आफ्टर सर्विस ऑल्सो, आफ्टर डिलीवरी सर्विस ऑल्सो हम चाहते हैं वो ये थे। सो हमारा प्राइसिंग जो है वो हम उनसे कम ही रखना चाहते हैं अभी तो फिलहाल। ओके, तो बस ये है कि ऐसा ना हो कि अनबॉक्सिंग वो एकदम मजे से करे, ऐसा नहीं कार्डबोर्ड फाड़ नहीं, हमारी पैकेजिंग होती ही नहीं है ऐसे। हमारी पैकेजिंग आप ऑर्डर करो ना, आपको पता चलेगा। आप ऑर्डर करो ना, आपको पता चलेगा। सो यू विल ऑल्सो सेंडिंग द फीडबैक कि क्या पैकेजिंग दी थी आपने। हमारी पैकेजिंग ही ऐसी होती है कि ना जो भी बंदा के पास आएगा ना वो यही सोचेगा कि इसको बहुत प्यार से ना और साइड से करके पूरा बॉक्स को सेपरेट करके खोलो। एक होता है नॉर्मल पैकेजिंग आना, वो तो फट जाता है पूरा। हम देते ही ऐसे हैं कि ना कोई खोलेगा तो वो भी होता है ना नजाकत से खोलना। एंड इवन नाउ लाइक एवरी वंस और ट्वाइस अ वीक हम बैठते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की अपनी पैकेजिंग को और इम्प्रूव कैसे करें करना, चेंज और करना, अच्छा एक्सपीरियंस कैसे प्रोवाइड करें अपने कस्टमर्स को। तो वी बिलीव कि जस्ट ऑर्डर डिलीवर करना इज नॉट द थिंग, वी बिलीव वी हैव टू गिव अ ओवरऑल एक्सपीरियंस टू द कस्टमर, देन ओनली ही विल रिटर्न और दूसरों को वो लोग हमारा रिकमेंड करेंगे ब्रांड। मतलब इतना सुंदर प्रोडक्ट होगा, इतना सुंदर एक्सपीरियंस होगा ना, तो कोई रिटर्न के बारे में या एक्सचेंज के बारे में सोच ही नहीं सकता। हाँ, ये चीज भी आती है। So, what next products can we expect from CatFat India? Like growth के लिए अब आप और products तो definitely research करते, तो हम और क्या expect कर सकते हैं आपसे? Well, right now we are planning actually क्या होता है कि स्टेशनरी में we are planning थोड़ा बड़ों के लिए स्टेशनरी थोड़ा लाना, थोड़ा मेच्योर लोगों के लिए, ऑफिस गोइंग पीपल के लिए, बिकॉज मेनली जो हमारी स्टेशनरी है वो थोड़ा बच्चों को केटर करती है, तो काफी बड़े लोग भी आते हैं। प्लस आजकल हमारे इन स्टोर शॉपिंग भी काफी हो रहा है, काफी लोग आ रहे हैं, तो दे कम विद द पेरेंट्स एंड एवरीथिंग। तो उन लोगों के लिए फ्लास्क है हमारे पास, वी हैव होम डेकोर आइटम्स एंड लॉट्स ऑफ अदर, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ स्टेशनरी। उनको लगता है कि वी आर टू ओल्ड फॉर दिस काइंड ऑफ स्टेशनरी, which they are not, I will tell you that, but they feel. तो this thing we are planning कि थोड़ा mature kind of stationery लाने के लिए, so that वो लोग भी ले सके। Exactly. Like for example, आप बैठे हैं अभी अपने डेस्क पर, so you must be having your desk organizer, pen stand, तो वो क्यों नॉर्मल वाला लेना, वो नॉर्मल आता है वो स्टील वाला, वो क्यों यूज करना? हाँ, उसमें भी प्लानिंग के थोड़ा कॉर्की हो, उसमें भी स्टील ही हो, बिकॉज जितने भी एडल्ट्स होते हैं, लाइक हम जैसे हो गए या टीनेजर्स भी हो गए, टीनेजर्स भी वो थोड़े क्यूट चीजें नहीं यूज करते हैं बिकॉज दे थिंक कि अब हम बड़े हो रहे हैं। हाँ. तो वही बेसिक स्टेशनरी में ही कुछ कॉर्कीनेस लेकर आना, हम ये क्यों नहीं कर सकते हैं? तो क्योंकि अगर कलरफुल डेस्क होगी तो फिर ऑफिस में बैठने में भी मजा आएगा ना। Exactly. तो yeah, that's what we are planning. Before I ask the final question, first of all, thank you for taking out time from No, your sir, it's our pleasure. It's our pleasure. We thank you for this opportunity. तो अगर कोई अभी स्क्रैच से बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहा है, आपकी इस जर्नी में क्या की टेक अवेज है, 2, 3, 5 जितने भी लाइक आप शेयर करना चाहोगे कि ये तो ध्यान रखना ही रखना है, डूज एंड डोंट्स जिसको बोलते हैं, तो आपके एक्सपीरियंस की क्या की टेक अवेज है अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसके लिए ध्यान रखना चाहिए ऐसा कुछ? सबसे बड़ी बात तो मैं कहूंगा यू शुड हैव अ नेवर गिव अप स्पिरिट, बिकॉज हमारे भी स्टार्टिंग के बिजनेस में एक फेज आया था व्हेन वी हमें 3 महीने हो गए थे एंड देयर वाज नो ऑर्डर्स, नो फॉलोअर्स एंड वी हैव इन्वेस्टेड ऑल आवर सेविंग्स टू इट, एंड काफी थोड़ा क्रिटिसिज्म भी आ रहा था लोगों से कि क्यों करा रही हो, क्रेजी अच्छी खासी लाख रुपए की जॉब थी, क्यों छोड़ी। तो वो पॉइंट आता है उस टाइम हमने गिव अप कर दिया होता है, वी बैक टू आवर रेगुलर रूटीन, तो वी वर नॉट हियर टुडे फ्रंट ऑफ यू। तो सबसे मेन चीज होती है ये कि नॉट गिव अप, एंड देन सेकेंडली आई विल से यू हैव टू सी द मार्केट, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अगर आपका प्रोडक्ट वर्कआउट नहीं कर रहा है तो क्या डोंट switch into a whole different category, but see what the community wants and develop same category उसमें थोड़ा changes करो. Maybe you have to work upon your costing, your branding, your labeling, your packaging, or your product all together. So many factors, but the main factor remains this only. कि कभी गिव अप मत करो and do your best and hard work. You have to work really hard. नहीं होता. Because जब हम जॉब करते थे, जाते थे 9-10 बजे, आराम से घर 7-8 बजे आ रहे थे. We have our weekend, Saturday, Sunday off. But जब हमने शुरू करा 7 AM we used to wake up. 9 बजे आओ, अपना काम देखो. कोई वीकेंड नहीं. हाँ, कोई वीकेंड नहीं, कोई संडे नहीं, कुछ नहीं. हाँ, प्लस इनिशियली आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि जो भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्ट ऑन द
एक्चुअल जो रिक्वायरमेंट है, बिकॉज नाउ डेज एंटरप्रेन्योर्स की ना डेफिनेशन लोगों के माइंड में अजीब सी आ गई है कि यू शुड हैव अ बिग ऑफिस, यू शुड हैव अ नाइस फर्नीचर, पूरा you should कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना have चाहिए, a अच्छी secretary. खासी। तो ये नहीं होना चाहिए ये सब माइंडसेट। नहीं होना एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट होना चाहिए कि यू कैन वर्क फ्रॉम योर होम इटसेल्फ, घर से काम करो, जहां जहां कॉस्ट कटिंग कर सकते हो कॉस्ट कटिंग करो, जो भी पैसा आ रहा है अपने प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करो। rather than doing it हाँ, somewhere and else. when you make good money, then you can rent an office and Do something else. get good furniture and rest of the Initially things. जो कैपिटल इन्वेस्ट करना है, do it on the correct things, like पैकेजिंग पे करो, प्रोडक्ट्स पे करो, इन सब पे करो, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो किसी के पास इतनी ज्यादा फंडिंग या कहीं से वो ले नहीं सकता और इतनी सेविंग्स भी नहीं होती है। इन केस अगर है भी तो सारी लगाने की जरूरत नहीं है। और जितनी भी है, आई ऑलवेज से इट्स इनफ। अगर आपके पास 5,000 10,000 भी आपको लगता है उससे भी start उससे करो, भी कर उससे भी सकते हो, करो। बस एक स्पिरिट होनी चाहिए आपके अंदर कि मैं कर सकता हूँ, हाँ। डोंट बी अ नेसेयर कि यार नहीं हो सकता। कि यार पहले ना इतने पैसे जोड़ने पड़ेंगे तब दिस कुछ इज होगा। आई विल से दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्मॉल बिजनेस। आप 5,000 से भी से शुरू भी कर सकते start हो, कर सकते आप 5 लाख से भी शुरू कर सकते हो। So So, this is what our we take. want कि जो भी स्टार्ट करेगा वो ऐसे ही करे प्लीज। हाँ, and I would like to say, like, you guys also are there helping out small business. Yeah. I would love to say you guys are doing great Very job. good job. I love you, watching thank your you. reels and जो भी आप टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हो। काफी चीजें तो मुझे नहीं पता होती, मैंने आपकी रील्स में देखी थी जो मुझे पता चली कि हाँ ये भी चीज होती है, जो टेक्निकल टर्म, बिकॉज एज अ नाइव पीपल हम लोग को इतना नहीं पता टेक्निकल टर्म, वहां आप पिचिंग करते हो एंड यू आर helping out. So you're doing a really great job. I must say hats off to you guys Yeah. for Thank you. promoting all the small businesses. So love you guys. I would say. हमारा एंड गोल तो यही है कि जो भी एक बंदा है जिसके अंदर भी एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है, उसको हम बस टूल्स दे, भाई चार लड़के आ जा। Exactly. और बाकी एक दूसरे के साथ Exactly. कम्युनिटी बना है और सब एक फैमिली है, तो सब एक दूसरे की हेल्प कर सकता है। हाँ ये चीज तो है। तो गाइस जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं तो कैट पैट इंडिया का स्टोर जाओ, इंस्टाग्राम पेज देखो साथ में उनका, और ऑर्डर करो। ऐसा नहीं कि जाके ब्राउज कर ले, ऑर्डर करो। हम भी करेंगे ऑब्वियसली। मेरा ऐसा नेक्स्ट नहीं है कि क्वेश्चन यही आने वाला था। And definitely do guys check out Dukaan page. They have Yeah. amazing collection of their reels. They have insight, बहुत अच्छे They अच्छे help you ideas. out in so many ways. And you have any query, just like we did, you guys also can just DM and ask away freely. They guys are really super cool. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गौरव, थैंक यू सरिता फॉर Thank you so much. It was lovely meeting Yeah, you. it was lovely. It was our pleasure meeting you. Definitely. Bye-bye. बाय। ऐसी और इंस्पायरिंग स्टोरीज जानने के लिए और अपना बिजनेस नॉलेज बढ़ाने के लिए दुकान को जरूर फॉलो करें।